Hello friends, I welcome you all on my CSAT by Deepak Sir channel. We already covered two videos related with the practicals of computer networks. So this is a subject available for AIML branch second year, right? SPPU University. Now today we'll see the next experiment, that is experiment number 2. So basically in this experiment we have to configure the router, and we have to configure the router with the help of router commands, as well as there is another parameter available for this video where we are going to deal with the subnetting. So we'll learn both the concepts. Okay, so related with the router is a device which is working on network layer, right? So in a network layer, basically to configure the router we are having different commands. Out of this we will see some of the important commands which we required basically for our practical, that we'll see here. ठीक है, so यहाँ पे configure of router using router commands and subnetting of network, these are the two parts we have. In a first part we'll see how to deal with the router, and in second part we'll see the subnetting, how to perform subnetting. So before going to see that, this is the structure which we are going to generate here. For our practical we are going to generate a structure. So we are having this router here. Okay, this is a router. So this router is having two interface. First interface I made, which is connected with the C. So I will divide this like this, two part. I will divide the structure in a two part. So this is one network part we have. So basically this here we are using a class A network, LAN 1 we can say it as a, or a class A network. So here I am using a IP address 10.10.10.0, and the subnet mask for class A is 255.0.0.0, or we can write in front of this, that is 8. So first 8 bit we are using for network, so that's why it is written in this way. And the second is LAN 2 or the network 2 we have. So here the network address is 192.168.2.0 and 255.255.255.0, or you can write it here as a 24. So the network ID is having a range of 24 bits, and your host ID is having a range of how many bits? 8 bits. As your network ID is of 8 bit, how many hosts are possible? So in that way it is said 2 raised to 8, that is a 256. But already in the last lecture I told you that all the 256 IP we can't use. If value is 0, that is considered as network ID, right? And if value is 1, that is considered as broadcast ID. So we can use only 254 host, we can connect only 254 PC in this network. And for this network again we are having 2 raised to power 24 minus 2, 2 raised to power 24 minus 2. Why minus 2? When all the values are 0 0, then that is considered as your network ID, and when all the values are 1, that is considered as your broadcast ID. ठीक है, means what is the broadcast, what is the network ID for this? If you see, the network ID is 192.168.2.0, and what is the broadcast ID? It is 192.168.2.255. This is the broadcast ID we have it, right? And here what is the network ID? Now we are using the network ID as 10.10.10.0. okay, so this is your network ID, and with respect to this, actually your network ID is 10.0.0.0, and your broadcast ID is 10.255.255.255. So in this way it is going to perform the action. Okay, so what we did here, so I used two switches directly. I have not interfaced to the router because router is having 2 to 3 ports. So whatever this 2911 is there, it is having total 3 port. Out of that, for this first part, the class A, I am giving this as a gateway. So what is my gateway for class A? 10.10.10.10. And for another class C IP address, class C network, I am giving the gateway as 192.168.2.10. So this is a structure which everyone should know. I connected one switch. Basically it is having 24 terminal. That's why it is written like this: switch 0, switch 1. Switch 0, I connected 3 devices: PC 0, PC 1, and I connected one more laptop for
observation purpose, and the IP address I have given 10.10.1, 10.10.2 and 10.10.3. Here for second switch, as I am using class C, I have given the IP address 192.168.2.1, 192.168.2.2 and 192.168.2.3. So in this way we are going to perform the configuration, and after this we will see how to use a router and what are the different commands we have to use. So initially I will make this stuff in front of you and then we'll go for the next part. Okay, so we'll start with this part. Okay, so before starting, initially what I will do, I will open the packet tracer. I already connect I already created the shortcut of that. So Cisco packet tracer. In the last first lecture I told you how to install it. Now we'll go for utilizing it. So this will come in front of you. You have to click on this green part, which is Cisco skills for all. The moment you will click on that, actually it will log into your system. Okay, so I will click here. It will give the message as you have successfully logged into the Cisco packet tracer. Close this tab. Now I can use my stuff. So what I will do, again the same thing. In the last class I told you that initially you have to come here where you will find what network devices. Okay, in network device I will select first device as a switch. So out of that, which switch we are going to select? 29, this switch 295024, right? Again what I will do, I will initially again show the step-by-step communication of this. So we'll again come here in end devices. In end devices I will select PC1, PC0. Next I will select this another PC1, and I will select one more laptop for understanding purpose. Okay, this part already I covered in the very first lecture where we deal with the connecting two PCs with a switch, right? तो चलो अभी आगे जाते हैं. We'll use the cable. In cable again, if you are connecting two different devices, we should go for a copper straight through cable. So I will select this cable. Now I will click on a switch. The moment you will click on a switch, it will give the number of ports available with your switch. Okay, so for switch I have total 24 ports. Out of that, first port I will connect here, and with PC we have RH232 USB. RH232 is a serial port we have. USB is your universal serial bus. We have two ports for that, but we are connecting with a fast Ethernet 0, which satisfy the stuff of where we connect louder fast Ethernet 0 is where we connected RJ45 connector, where we are having the LAN cable. Okay, and I already told you that initially it takes some action, and that's why this part is present in orange stuff. Okay, I will just a moment. Yeah, so you can see this part. Okay, it is in orange stuff because the connection has not. Now see, the same part become a green. Now you can do the connection between this. Okay, so switch is a device which is working on data link layer. Again I will come here, I will go for copper straight through cable. I will select this fast Ethernet 0. Now here if you see, now only 23 ports are there because first port is used by PC0. So I will connect to the PC2, right? Then again I will come here, copper straight through cable. I will use this, I will connect this and like this. Okay, as our switch is a physical device, so we have to give the connect. But here it is also possible to use a Wi-Fi, and you can connect the laptop wirelessly. Both the things are possible. Okay, so this stuff already we covered in the last class. As well as there is one more thing here for PC. In the physical part we will be having a this stuff. We can off the PC, we can on the PC. You can see this. Now the color is yellow, right? When I will make it off, you can see here the color, it becomes, the entire link became disable. That's why it is showing in the red color. Clear, right? Because I made my PC off. You can see this part, this link is disabled because you made your PC off. How you can understand? See here, the color is what? It is now black. But now I will enable this stuff. When I will enable this stuff, you can see the connection start establishing here. You can see this stuff here. यहाँ पे कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गया है बिकॉज दिस इज ऑन. ये आपका ऑन हो गया है पीसी. तो आप पीसी ऑन ऑफ भी कर सकते हो. अलग अलग इंटरफेसेस है, इसमें से कुछ भी इंटरफेस आप निकाल सकते हो. ठीक है, अगर आप ये वाला इंटरफेस निकालना चाहते हो, यू कैन कम हियर एंड यू कैन रिमूव हियर, यू कैन प्लेस इट ओवर हियर. बट करंटली पावर ऑन है तो ये नहीं होगा. आपको पावर रिमूव करके ये वायर्ड निकाल के वहाँ पे वायरलेस डाल सकते हो. दैट्स योर चॉइस. ठीक है, but we'll not go in detail of that. That we'll see in the next
what you can say, lectures, next class. So this is clear. Now as per our requirement, what we'll do, we'll assign the IP address. So what was the IP addresses we planned? 10.10.10.1 and the gateway I planned is 10.10.10.0. Okay, clear. But as we are using a switch here, the gateway is not important, but I will give the gateway because this switch we have to connect to the router. So that's why I will go here, then I will go to the desktop. There is option IP configuration. Basically currently I am dealing with a static IP, so I will give the IP address what, 10.10.10.1. I have planned this IP address. By default it is class A, so the subnet mask is 255 dot this stuff. Okay, then I will give the next IP address 10.10.10.10. This is the default gateway which I have planned to give, because this switch I am connecting to the router and the port number of, or the port IP address of that router is 10.10.10.10. So I will copy this stuff. Okay, this is clear. Now I will connect the same stuff to this PC, right? Again go to the desktop, go to the IP configuration. Now the second IP was the 10.10.10.2. the subnet mask is same 255 as it is class A, and I will paste my default gateway, it is 10.10.10.10. so it is get assigned to this. And for laptop I will come here, again I will go for desktop, use the IP address. Your IP address is 3, for laptop it is 3, the subnet mask is this, and your default gateway. One more thing, this default gateway you should not assign to any PC. If you assign it, then you can't assign it to your what you can say, router. If you want to see, in the last lecture also I show the repeated IP address is not allowed. I can't give the IP address 2. The moment you will give 2, it will give the message. What is the message? Check this. This address is already used in the network. So that's why repetition is not allowed. Because of that we can't use the IP address, ठीक which is going to repeat. So that's why ये जो default gateway है, इसका IP address आप किसी भी PC को assign मत करो. ये IP address हम बाद में देने वाले हैं router के लिए. क्लियर? तो ये स्टेप क्लियर हो गया इन दिस वे. ठीक है. नाउ यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो मैंने आपको पहले लेक्चर में नहीं बोला, वो ऑप्शन है यहाँ पे जाके आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हो. सी प्लेस अ नोट, आई विल कम हियर एंड आई विल असाइन द आईपी एड्रेस. क्या था इसका आईपी एड्रेस? 10.10.10.1. okay, I will click here and then I will also assign the IP address 10.10.10.2, and for laptop it was 10.10.10. what was that? It was 3. Clear? Here I can also write the LAN. This is LAN 1, LAN 1, and LAN 1, and what IP address is I chosen? 10.10.10.0, and the subnet mask is 255.0.0.0. okay, this is LAN 1. so for your reference you can write here. Clear? तो ये हो गया one switch. Now I have to check whether it is enabled or not. So there are different steps we have. At the bottom you can see we are having certain scenarios. So what I will do, I will simply with the help of PDU I will check. So I will keep first PDU here, and second, if I will click on laptop, if everything is okay, the moment you will click here at the bottom you will get the message that your connection is this thing is successful. So you can see here at the bottom the packet is successful. So my source is PC0, destination is laptop 0. Okay, so it is using which protocol? ICMP, Internet Control Message Protocol. So connection is established. So without even doing the ping command, we can directly check. Here is the option. This is the option. What is the name of that? You can check this. Add a simple PDU. The second option which is available on the top. Okay, I selected here. Now I will place on PC1 and I will put it on PC0. So it will give the message. You can check the message at the bottom. Successful means the ping operation you can easily do. And the third combination you can take, select this packet, put it on PC1 and then put it on laptop. It will show you the message like this. So with respect to switch, everything is okay. Everything is okay. ठीक है. Now again the same stuff. ये इस तरह से हो गया. If you want to go in a simulation, you can go in a simulation. You can this thing filters, edit the filters. You can select ICMP protocol. Then I already told you this stuff. Okay. So you can start this stuff. Okay. So simulation you can start it. So you'll get a messages. Basically I put 3 this stuff. So the messages will be transferred to all the stuff, right, and you will get a response like that. So this stuff already we have seen. Okay, but now it might be confusing for you because we have taken all these 3 parts. We'll remove this stuff.
we'll remove this scenario. Okay, I will delete this scenario. Now I will place a single packet. So see, I will suppose now I will start from laptop and then I will move toward PC0. Okay, and then I will start the event. So you see, initially laptop will send the packet to your switch, then switch will only transmit to the corresponding PC. Now this is called as a request. After request, PC1 will send the reply. So it will send the reply to again switch, and from switch it will come to the laptop 0, and then you will get a tick option which indicates that everything is okay. Now you can see the tick, right? This means that whatever the work you've done, the work is properly happened. Okay, and here you can see successful, as well as in between whatever the different operations are there, कहाँ से कहाँ तक गया, कितना टाइम लगा, ये सारी चीज़ें आपको राइट हैंड पे मिलेंगी. ये सिमुलेशन पैनल अवेलेबल है. ठीक है, क्लियर. तो दिस इज रिलेटेड विद द वन स्विच. ये आई थिंक क्लियर हुआ होगा. अब मैं रियल टाइम में आता हूँ. यस, ये इवेंट को क्लियर कर देता हूँ. इसको सिनेरियो को डिलीट करता हूँ. पहले इसको क्लियर कर दो एंड डिलीट द सिनेरियो, सो दैट मेमोरी फुल ना हो जाए. अब मैं फिर से रियल टाइम पे आता हूँ. रियल टाइम पे आने के बाद अब ये हो गया है एक नेटवर्क. उसी तरह से हम दूसरा नेटवर्क बनाएंगे. अगेन गो हियर, सिलेक्ट द सर्वर, इन डिवाइसेस में जाओ, यहाँ पे मिलेगा स्विच. पहले स्विच लेते हैं हम. ओके, स्विच कौन सा लेना है आपको, यहाँ पे आके स्विच सेलेक्ट करो. स्विच के बाद अगेन इसके लिए भी मैं इन डिवाइसेस में जाता हूँ. दो पीसी यूज करूँगा यहाँ पे, PC2. अभी PC2 क्यों आ गया, क्योंकि PC0 PC1 यहाँ पे आ गया. दो PC हो गए एंड आई विल सिलेक्ट वन लैपटॉप. तो पहले लैपटॉप 0 था, अभी लैपटॉप 1 बनेगा. अब यहाँ पे आपको कौन सा IP एड्रेस यूज करना है दूसरे पोर्ट के लिए. इट इज़ LAN 192.168.2.0 और इसका आपका सबनेट मास्क है 2.10, सॉरी गेटवे 2.10. सो विल डू द कनेक्शन अकॉर्डिंगली. यहाँ पे आ गए. पहले यहाँ पे जाके केबल सिलेक्ट करो. आपके स्विच और पीसी अलग टाइप के डिवाइसेस है. पीसी टू पीसी होगा तो आप क्या कौन सा यूज करोगे, यू कैन गो फॉर द क्रॉस ओवर केबल. बट पीसी टू स्विच जाना है तो आई हैव टू गो फॉर दिस केबल. इसमें 24 पोर्ट्स है, तो पहला पोर्ट सिलेक्ट किया आपने. इट इज़ कनेक्टेड विद द पीसी, पीसी के फास्ट इथरनेट को. तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट चालू कर देगा. अगेन कम टू दिस क्रॉस स्ट्रेट थ्रू केबल, सिलेक्ट द केबल, कनेक्ट टू द योर फास्ट इथरनेट 0, राइट. एंड यहाँ पे आ जाओ एंड कनेक्ट इट टू योर लैपटॉप. थर्ड पोर्ट वी आर कनेक्टिंग टू आवर लैपटॉप्स फास्ट इथरनेट. यहाँ पे दो केबल्स है, कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल और क्रॉस ओवर केबल. क्रॉस ओवर केबल कब यूज करना है, मैंने जब पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल किया था वहाँ पे एक्सप्लेन किया था. व्हेन यू आर कनेक्टिंग सेम डिवाइसेस यू हैव टू यूज अ क्रॉस केबल, सॉरी कॉपर क्रॉस केबल. एंड व्हेन यू आर कनेक्टिंग अ डिफरेंट डिवाइस यू हैव टू यूज दिस. ठीक है, तो ये हो गया. तो इसका लैन क्या होगा. तो अगेन आई विल गो हियर, आई विल सिलेक्ट दिस स्टफ. ओके, यहाँ पे ड्रॉ रेक्टेंगल नहीं, आपको क्या सिलेक्ट करना है बेसिकली, प्लेस अ नोट. ये सिलेक्ट करो, यहाँ पे आ जाओ, गिव द व्हाट आर द स्टफ यू वांट टू राइट. सो दिस इज माय LAN 2. व्हाट आर द IP एड्रेस आई प्लान, 192.168.2.0. and what is the subnet mask, 255.255.255.0. as it is class C. We can write in front of this what is that, it is written as 24 also. This is also allowed in class A also. So here you can write /8. In class A it is also allowed in this way. Okay, so what are the, again now we'll write the IP addresses which I have planned. Okay, 2.1 से start हो गया आपका. So again I will come here, yes, place a note. पहले PC का IP एड्रेस क्या है आपके, 192.168.2.1. सेकंड PC का IP एड्रेस क्या है आपके, 192.168.2.2. और लैपटॉप का IP एड्रेस हमने दिया था 192.168.2.3. ओके, so we'll assign the IP address. How to assign the IP address, move here, click on that, go to the desktop. Desktop पे ऑप्शन है IP configuration. So your first IP is what, 192.168.2.1. बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क को ले लेते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं. एंड व्हाट वाज माय गेटवे, गेटवे हमने क्या प्लान किया था, योर गेटवे वाज 10. इट वाज अ 10. ठीक है, I will simply do copy paste. You can type as your choice. So my gateway was 10. और ये gateway किसी भी PC को assign नहीं करना है. This is the IP address which we are assigning to your router. Now it is called as gateway. आपका पैकेट इंटरनेट पे जाने के लिए कौन सा रूट फॉलो करेगा. So switch is connected to your which router, that is decided by gateway. तो ये gateway होगा 2.10. ठीक है,
अब यहाँ पे आते हैं, इसका आईपी एड्रेस फिर से देते हैं, कहाँ पे जाना है, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, गिव द आईपी एड्रेस, सो इट इज़ 2.2, यू कैंट गिव 2.1, अदरवाइज ये क्या एरर देगा, देखो 2.1 दिया आपने, और द मोमेंट विल मूव टुवर्ड दिस इट विल गिव द मैसेज, व्हाट इज दैट मैसेज, दिस आईपी एड्रेस इज ऑलरेडी गिवन टू द वन ऑफ द सिस्टम ऑन योर नेटवर्क। तो ये यहाँ पे आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे देता हूँ 2, बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क इज 255.255.0, and then as I have to connect it to my switch, to router, I have to give default gateway। अभी राउटर यूज नहीं किया, थोड़ी देर में हम राउटर यूज करते, तो ये हो गया आपका पहला सिस्टम। नाउ आई विल कम हियर, आई विल असाइन द आईपी एड्रेस टू द सेकंड सिस्टम, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ओके, सेकंड का भी आईपी एड्रेस दिया क्या हमने, सेकंड का दिया, पहले का, ओके, दोनों के हो गए अभी। आई विल मूव टुवर्ड द लैपटॉप फॉर असाइनिंग द आईपी एड्रेस, डेस्कटॉप आईपी एड्रेस, द वैल्यू इज, again I will paste it, but the IP address is 3, subnet mask by default लेगा यही, and your network ID, what is your network ID, गेटवे का ID होगा 10। तो इस तरह से सारे के सारे सिस्टम आसान हो गए, ठीक है। नाउ यू कैन चेक द कनेक्शन, अभी सारे के सारे ग्रीन हो गए, तो आप कनेक्शन भी चेक कर सकते हो, किसका, पहले तो यहाँ पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट है इसका, राइट, हाउ टू चेंज, पहले खुद का आईपी एड्रेस चेक करो, आईपी कॉन्फिग आपने दिया हुआ असाइन हुआ क्या, यस, 192.168.2.1, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ सो दैट यू कैन चेक इट, आईपी कॉन्फिग। अभी लास्ट वाले रिकॉर्डिंग में मैंने आईपी कॉन्फिग कमांड डाला है, अब मैं पिंग करता हूँ, पिंग किसके साथ करो, 192.168.2.1, पहले खुद के साथ पिंग करते हैं, when you will ping on with yourself, तो आपको ये आउटपुट मिलेगा, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। TTL इज अ टाइम टू लिव, नंबर ऑफ होप्स 128 है, देन आपका राउंड ट्रिप डिले है, यहाँ पे कितने बाइट सेंड हो गए, 4 पैकेट सेंड हो गए, 4 पैकेट 32 बाइट के, अब जितने बाइट सेंड हो गए, जितने पैकेट सेंड हो गए उतने ही रिसीव हो गए, सो देर इज लॉस 0%। तो इस तरह से ये पिंग हो गया खुद के साथ। अब दूसरे सिस्टम के साथ भी पिंग करके देखते हैं, ठीक है, क्या है दूसरे सिस्टम का आईपी, सपोज मैं लैपटॉप के साथ पिंग करना चाहता हूँ, सो व्हाट इज दैट आईपी, ये आप अपर की प्रेस करते हो ना, प्रीवियस सारे कमांड्स आते हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी यहाँ पे डालता हूँ 2.3, नो नीड टू टाइप ईच एंड एवरी टाइम एवरी स्टेप, अपर की प्रेस करो, आपके इसमें जो पेज अप का की है तो वो करोगे तो आपके प्रीवियस कमांड आएंगे। तो मैंने इसके पहले पिंग किया था खुद के साथ, तो मैंने सिर्फ अपर की प्रेस किया, 2.1 की जगह पे 2.3 डाला। अगर सारी चीज़ें प्रॉपर है तो आई विल गेट इन दिस वे, ठीक है। तो ये हो गया पिंग, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर इस तरह से देख सकते हो। अगर आपको देखना है थ्रू पैकेट ऑल्सो आप देख सकते हो, कैसे देखो, यहाँ पे जाओ, पैकेट सेलेक्ट करो, ठीक है, मैंने पहला पैकेट लिया, PC2 से लेके ये वाला पैकेट, तो देखो यहाँ पे मैसेज क्या आ गया, नीचे यहाँ पे देख सकते हो आप, यू विल गेटिंग ए सक्सेसफुल, राइट। आप ऐसा कुछ भी देख सकते हो। दूसरा मैंने लिया यहाँ से PC3 लिया, PC3 टू लैपटॉप लिया, तो वो भी नीचे सक्सेसफुल आ गया, यू कैन सी दिस सक्सेसफुल। सो विदाउट डूइंग एनी ऑपरेशन आप सारी चीज़ें कर सकते हो, हर बार पिंग करना जरूरी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, PC3 टू PC1 चेक करता हूँ, तो वो भी सक्सेसफुल आ गया। कैन यू सी इट दिस, सी तीनों के तीनों आपके हो गए सक्सेसफुल, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ये सीन। अगर आपको सिमुलेशन करना है, सिमुलेशन भी करो, जाओ यहाँ पे गिव स्टार्टिंग कहाँ से कहाँ पे डालना है, सपोज मुझे लैपटॉप से, अब लैपटॉप से स्टार्ट करते हैं, आई वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स PC3, ये दे दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ। तो पहले इसने स्विच के लिए रिक्वेस्ट भेजा, स्विच से जाएगा आपके PC को रिक्वेस्ट, ओके, नाउ PC विल रिप्लाई इट, रिप्लाई कैसे करेगा, अगेन यहाँ से स्विच को आएगा एंड इट विल गिव टू योर लैपटॉप। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो इन प्रोग्रेस बता रहा है, बट द मोमेंट इट विल हिट टू योर लैपटॉप, राइट, रिक्वेस्ट किया, रिस्पॉन्स आ गया, यहाँ पे प्रॉपर्टी का आएगा विच मीन्स इट इज सक्सेसफुल। तो इस तरह से आप सारे ऑप्शन चेक करके देख सकते हो। पिंग कमांड भी है, या सिर्फ पैकेट एक दूसरे के ऊपर डाल के भी देख सकते हो, या तीसरा चीज़ आप इस तरह से सिमुलेशन भी कर सकते हो। तो ये मैं इवेंट लिस्ट क्लियर करता हूँ, देयर इज नो इशू, इसको डिलीट कर दो सो दैट, और इसको फिर से रियल टाइम मिला, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ अभी मैं रियल टाइम में देखो, जैसे ये कनेक्शन चेक करो, एक पैकेट इधर डालता हूँ, दूसरा पैकेट इस लैपटॉप को डालता हूँ, क्या मैसेज मिल रहा है, कैन यू सी द मैसेज, फेल्ड, वाई इट इज फेल्ड, देर इज नो लिंक, इन दोनों के स्विच के बीच में मैंने अभी लिंक नहीं डाला हुआ, दैट्स व्हाई इट गिव्स द मैसेज। आप कौन सा भी चेक करो आगे जाके। चलो ये PC1 तो मैं ये दूसरे PC3 को देखता हूँ, तो पहले तो कनेक्शन चेक करने का ट्राई करेगा, बट एट द एंड ये कनेक्शन होने वाला है फेल। तो अभी हम यहाँ से चालू करेंगे हमारा एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो पहले इसको सेव करता हूँ, राइट, ये ऑप्शन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया नहीं था। यहाँ पे ऑप्शन है फाइल, उसके बाद यहाँ पे सेव एज करो एंड गिव द पाथ वेयर यू वांट टू सेव। तो अभी मैंने CN नाम का एक फोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसमें जाके मैं इतने अलग अलग चीज़ें, तो अभी मैं डालता हूँ, राउटर का है, राउटर, इसको देता हूँ मैं ट्रायल 1,
ट्रायल नाम देता हूँ सो दैट इट कैन सेव इट। सेव करने का फ़ायदा ये है, अब ये सेव हो गया, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। द मोमेंट आई विल क्लोज इट, इट विल आस्क मी डू यू वांट टू सेव, यस मैंने सेव किया। अब मैं जाता हूँ CN फोल्डर में और इसको मैंने नाम दिया है राउटर ट्रायल। तो जहाँ पे भी सेव है वहाँ पे जाके आप ओपन कर सकते हो, सो दैट हर बार आपको इनिशियल से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। सो इट इज़ ओपन, बट द मोमेंट इट ओपन्स इट विल अगेन टेक अ टाइम। ये आपके अभी देखो सारे के सारे ऑरेंजेस है, ठीक है ना। ऑरेंज का मतलब लगभग कनेक्शन कंप्लीट है, बट आपको इट माइट बी पॉसिबल पैकेट ड्रॉप हो सकते हैं। सो वेट करो, इसको कब तक वेट करना है, जब तक ग्रीन नहीं होते तब तक हम अगला वाला प्रोसेस देखते हैं। नाउ वी हैव टू इंटरफेस, ये मेरा नेटवर्क है क्लास ए का, ये मेरा नेटवर्क है क्लास सी का। नाउ आई हैव टू कनेक्ट दिस टू नेटवर्क्स एंड फॉर दैट वी आर बेसिकली यूजिंग अ राउटर। तो राउटर आपको जो चाहिए यूज करो। ओके, आई विल सिलेक्ट सपोज 1841, दिस राउटर आई विल सिलेक्ट। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगर में देखो क्या क्या। ओके, तो देखो पहले ही बोल रहा है जब भी राउटर क्लिक होगा तो ये राउटर अभी क्या हो रहा है, इट इज स्टिल बूटिंग। अब बूटिंग हो गया है, यस ओके। अब ये बूटिंग हो गया, कैसे पता चला, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा तब ये होगा। तो देखो इसको कितने पोर्ट्स प्रेजेंट है, फास्ट इथरनेट 0, फास्ट इथरनेट 1। अभी मैं मेरे राउटर को सिर्फ 2 ही नेटवर्क कनेक्ट कर रहा हूँ, सो दिस 2 इज ओके फॉर मी। बट इफ यू वांट सम मोर, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप सपोज मैं 1941 करता हूँ, तो इसके इसमें चले जाता हूँ और इस पे कॉन्फ़िग में जाता हूँ। सॉरी, इसमें भी 2 ही पोर्ट्स हैं, ठीक है। जस्ट आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन है, यू कैन सी दिस, ये वाला ऑप्शन क्रॉस डिलीट आ गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, आई विल सिलेक्ट दैट ऑप्शन एंड आई विल डिलीट इट। राउटर 1 डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आई थिंक यस 2911 ये देगा आपको 3 पोर्ट्स, ठीक है ना। तो इसके कॉन्फ़िगर में चला जाता, यस। तो देखो यहाँ पे 3 पोर्ट्स अवेलेबल है। सो ये डिवाइस स्टिल बूटिंग हो रहा है इसका। तो अगर आपको 2 से ज़्यादा, ये बूटिंग हो गया, 2 से ज़्यादा देना है, देखो गीगाबिट ईथरनेट 0, गीगाबिट ईथरनेट 1, गीगाबिट ईथरनेट 2, तो इस तरह से आप ले सकते हो, ठीक है। तो जो आपको लेना है आप ले लो, दैट्स योर चॉइस, एंटायरली योर चॉइस, राइट। तो अभी के लिए ये 1841 इज ऑल्सो सफिशिएंट, क्योंकि आपका फास्ट इथरनेट का पार्ट है, सो इट डजेंट मैटर टू यू, ठीक है। अब ये लिया तो अभी हमें लेना पड़ेगा क्या, अगेन वी हैव टू गो टू द केबल एंड वी हैव टू सिलेक्ट द केबल। तो देखो यहाँ से राउटर में जाता हूँ मैं, राउटर में 2 पोर्ट्स है, पहला पोर्ट 00 पोर्ट मैंने इंटरफेस किया इस स्विच को, अब इसका 4th पार्ट होगा। एट द मोमेंट यू विल इंटरफेस राउटर, ये डिसेबल होगा। क्यों डिसेबल होगा, स्विच इज अ डिवाइस विच इज वर्किंग ऑन डेटा लिंक लेयर, तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें डायरेक्टली देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। बट राउटर को आपको कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा, तभी वो सारी चीज़ें इनेबल होगी। दूसरा पोर्ट में इंटरफेस करता हूँ मेरे दूसरे नेटवर्क को, ठीक है। यहाँ पे भी इसका फास्ट इथरनेट 0। तो ये दोनों के दोनों अप टू दिस पॉइंट आई थिंक इट इज़ क्लियर। अभी मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा जिससे हम राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कौन सी 2 चीज़ें, एक और चीज़ मैंने इसका आपको ये बोला था, यहाँ पे नोट पे जाके लिख भी लेते वो नोट, प्लेस नोट। क्या क्या इंटरफेस आईडी दिया था हमने, 10.10.10.10, ये होगा आपका आईपी। ये किसका आईपी हो गया आपका, ये राउटर का जो ईथरनेट पोर्ट, यहाँ पे मैं ये लेता हूँ, एरो लेता हूँ, आपको पता चलेगा ये कौन सा है। कैन यू सी दिस, इट इज FA00। क्लियर है क्या, ये देखो, ये अभी शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है FA00 एंड FA04। स्विच के आपको फास्ट इथरनेट 4 पोर्ट को इंटरफेस है और राउटर का फास्ट इथरनेट 0, तो आप राउटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दैट्स वाई वी हैव टू गिव दिस 10.10.10.10 आईपी टू दिस पोर्ट नंबर 0। इन द सेम वे यहाँ पे हमें दूसरा पोर्ट देना था, क्या देना था वो पोर्ट, इसके लिए दूसरे साइड के लिए वो आईपी एड्रेस था 192.168.2.10। इसका गेटवे, सब पीसी के लिए हमने ये गेटवे असाइन किया हुआ है। गेटवे का मतलब आपका पैकेट नेटवर्क को जाने के लिए कौन सा आईपी एड्रेस, कौन सा राउटर यूज करेगा और उसका कौन सा पोर्ट। तो ये वाला स्विच हमने कनेक्ट किया है, ये कौन से पोर्ट को, दिस इज द फास्ट इथरनेट 1, ये यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। So it is FA01. FA01 is interface with the FA04 of your switch. So हमें इस तरह से ये वैल्यूज देने पड़ेंगे। तो अब आता है राउटर का प्रोग्रामिंग, जो बेसिकली यहाँ का एम है। जब भी आपको राउटर को प्रोग्राम करना है ना, आपको जाना है CLI। CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस, राइट। CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, ठीक है ना। चलो इसको छोटा ही रखता हूँ,
इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, ठीक है। तो यू कैन सी दिस स्टफ हियर। तो राउटर जैसे आपने स्टार्ट किया तो राउटर पहले बूटिंग करते रहता है। अब इसके बाद हम देखो एंटर की प्रेस करो 3-4 बार, आपको ऐसा प्रॉम्प्ट मिलेगा राउटर जैसे। नाउ वी हैव टू डू द प्रोग्रामिंग। तो अभी राउटर के दोनों भी पोर्ट डिसेबल है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे देखो दोनों में भी रेड कलर है। आपको एक एक पोर्ट इनेबल करना पड़ेगा। तो हम पहला क्लास ए का देखते हैं, फिर हम जाएंगे क्लास सी के लिए, ठीक है। तो क्लास ए कौन से पोर्ट को इंटरफेस है, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे एरो लेके जाओ, आपको दिखाई देगा, देखो फास्ट इथरनेट। ओके, अभी तक हमने आईपी एड्रेस भी असाइन नहीं किया, बट मैंने अभी आपको बोला था यहाँ पे कर्सर लेके जाओ तो आपको पता चलेगा कौन से पोर्ट को इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 0। तो उसको आईपी एड्रेस क्या देना है आपको, 10.10.10.10। यही क्यों देना है, क्योंकि जहाँ ये स्विच को जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है सब में हमने डिफॉल्ट गेटवे डाला है 10.10.10.10। गेटवे का मीनिंग होता है आपका पैकेट बाहर जाने के लिए कौन सा राउटर यूज करेगा और उसका कौन सा इंटरफेस यूज करेगा और उसका आईडी क्या होगा, दैट इज अ गेटवे। तो हमारा ये स्विच कनेक्टेड है इस पोर्ट को, स्विच को, और उसको हम आईपी एड्रेस देने वाले 10.10.10, क्योंकि ये सब के तीनों भी जो दो सिस्टम और एक लैपटॉप उनके गेटवे में हमने ये आईपी एड्रेस दिया है। तो आई विल कम हियर एंड आई विल असाइन द आईपी एड्रेस। तो मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे आता हूँ राउटर को। तो राउटर में आप एक तो EN लिखो या इनेबल, इसको इस तरह से लिखो इनेबल। द मोमेंट यू हिट इनेबल, यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट चेंज हो गया आपका। इनेबल के पहले क्या था आपका, ये लेस देन वाला साइन था, अभी प्रॉम्प्ट हो गया हैश वाला साइन। इसके बाद अभी मुझे क्या करना है, आई हैव टू कॉन्फ़िगर द टर्मिनल। तो ये होगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल। यू हैव टू राइट दिस कमांड एंड यू हैव टू प्रेस एंटर। द मोमेंट यू विल हिट एंटर, ये आपको देखो ये प्रॉम्प्ट फिर से चेंज हो गया। पहले सिर्फ हैश था, अभी वहाँ पे कॉन्फ़िग आ गया। अब आपको क्या कॉन्फ़िग करना है, आपको कॉन्फ़िग करना है इंटरफेस। इस राउटर को कितने इंटरफेस है, यहाँ पे कॉन्फ़िग में जाके देखो आपके पास दो इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 00, फास्ट इथरनेट 01। अभी हम लैन 1 की बात कर रहे हैं, जो इंटर कनेक्टेड कौन से इंटरफेस को है, फास्ट इथरनेट 0। सो आई विल कम हियर एंड आई विल राइट हियर। मुझे किसको कॉन्फ़िगर करना है, इंटरफेस। आप सिर्फ इंटर टाइप करो और टैब दे दो, इट विल टेक द मैसेज एज इट इज इंटरफेस। उसके बाद मेरा फास्ट था तो मैंने सिर्फ फास्ट टाइप किया और मैंने टैब दिया, उसने बाय डिफॉल्ट लिया फास्ट इथरनेट। उसके बाद वो इंटरफेस था 0/0। सो यू टाइप इट, इट विल गिव यू द कॉन्फिग इफ, ठीक है। ये कैसे पता चला, इस कॉन्फ़िगरेशन में जाके देखो क्या नाम लिखा है, फास्ट इथरनेट 00, ये इंटरफेस है। तो आपको पहले इंटरफेस नाम लिखना पड़ेगा, देन फास्ट इथरनेट 00, राइट, फास्ट इथरनेट एंड 00। अब ये आएगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब मुझे इसको देना है क्या, आईपी एड्रेस। सो द कमांड इज आईपी एड्रेस। व्हाट इज आईपी एड्रेस, कौन सा आईपी एड्रेस मैंने प्लान किया था, मैंने आपको बोला था ये डिफॉल्ट गेटवे आपका, व्हाट इज दैट, 10.10.10.10, a default gateway, and what is your subnet mask, 255.255.255.0, and just press enter key। ओके, नाउ इसके बाद सिर्फ आईपी एड्रेस असाइन करके अब कुछ नहीं होने वाला, आपको पहले वो इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के लिए कमांड है नो शट या शट डाउन लिखते हैं हम, नो शट डाउन। द मोमेंट आई विल एंटर की, नाउ यू कैन सी ये लिंक आपका इनेबल हो जाएगा, जो आपको अभी कौन से कलर में दिखाई दे रहा है, जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट आपका इनेबल हो जाएगा। तो राउटर नेटवर्क लेयर पे वर्क होता है, तो दैट्स वाई ये डायरेक्टली इनेबल नहीं होगा। अब मैं नो शटडाउन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यू कैन सी हियर ये वाला पार्ट आपका देखो, इट इज बिकमिंग ग्रीन एंड ऑरेंज। तो पूरा सेटअप होने तक यू कैन वेट फॉर दैट, और यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, ये देखो ये हो रहा है कि आपका पूरा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना, नो स्टेटअप। द मोमेंट ये पूरा इनेबल हो जाएगा तो यहाँ पे आपको चेंज, देखो ये लिखा हुआ है चार्ज स्टार्ट टू अप, तो ये अप हो रहा है आपका, ये पोर्ट अप हो रहा है, राइट, डाउन एंड अप, शट डाउन बंद करो, उसका दूसरा होगा आपका अप। ओके, इसके बाद मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। नाउ यू कैन चेक द आईपी कॉन्फिग, आप आईपी कॉन्फिग कमांड से चेक कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो फास्ट इथरनेट 0 आपको ये भी लिखना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि ये राउटर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोनों के दोनों पोर्ट्स आपके इनेबल हो गए। होप सो ये क्लियर हुआ होगा। तो ये इतने सारे कमांड्स आपको डालने हैं। कौन से कमांड, पहला कमांड है इनेबल, इनेबल के बाद दूसरा कमांड है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल के बाद तीसरी चीज़ है आपकी, दैट इज नथिंग बट इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस है वो, सो ये इंटरफेस है आपका, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 00। उसके बाद जो आईपी एड्रेस देना है उस इंटरफेस को, वो आईपी एड्रेस विद देयर सबनेट मास्क। ओके, एंड लास्टली आपको यूज करना है नो शट डाउन। तो ये 5 कमांड आपको याद रखने हैं, पहला इनेबल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल,
then interface fast ethernet 0.0, next is your IP address and last command is no shut. क्लियर है? ये हो गया पहला पार्ट अब क्लियर हो गया. अब ये इनेबल हुआ कि नहीं आप चेक कर सकते हो. ये पैकेट उठा लो, ये पैकेट इस पीसी पे डाल दो एंड कीप द सेम पैकेट ऑन राउटर. सो यू कैन सी सक्सेसफुल मैसेज आ गया. अब मैं ये पैकेट उठाता हूँ, इस सेकंड पीसी पे डालता हूँ, अब इस साइड के पीसी पे डालता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया? फेल हो गया. क्यों फेल हो गया? क्योंकि दूसरा लिंक अभी तक हमने इनेबल ही नहीं किया. तो आपको ये लिंक क्या करना पड़ेगा? इनेबल करना पड़ेगा. दैट इज द स्टेप. ठीक है. तो अब दूसरे लिंक का इनेबल बताता हूँ. पहला लिंक मैंने विद द हेल्प ऑफ कमांड बोला. अब मैं दूसरा लिंक आपको एक थोड़े अलग मैकेनिज्म से बताता हूँ. वहाँ पे भी यही करना पड़ेगा. क्या करो? अगर कमांड थ्रू जाना है तो पहले इनेबल होगा, उसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल होगा, उसके बाद होगा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 और उसको हमने क्लास सी आईपी एड्रेस दिया था. तो उसका क्या आईपी एड्रेस था इस पोर्ट का? 192.168.2.10. तो आपको देना पड़ेगा आईपी एड्रेस 192.168.2.10 एंड देन 255.255.255.0. ओके, ये थोड़ा सा ना गलत हुआ है हमारा, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये चेंज करता हूँ. ठीक है. सो ये क्या इशू हो गया? मैंने उसको क्लास सी का सबनेट मास्क डाला है. इनेबल करता हूँ मैं अभी. ओके, ऑलरेडी उसी में ही हम, तो मैं अपर की प्रेस करता हूँ, अपर की, हाँ, और ये सबनेट मास्क में चेंज करता हूँ. सॉरी, बाय डिफ़ॉल्ट गलती से वो क्लास सी का हो गया 0.0. अब ये इनेबल करेंगे और उसको क्या करेंगे हम? पहले नो शट डाउन करेंगे. सो इट विल असाइन द आईपी एड्रेस. ये आईपी एड्रेस इसको असाइन होगा. ठीक है. अभी सबनेट मास्क से इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्लास सी में क्लास ए आ जाता है. सो इट डजेंट मैटर एटलीस्ट फॉर क्लास ए, बट क्लास सी को मैटर करेगा. ठीक है. अब हम बात करते हैं इसका. तो इसके लिए मैं चला जाता हूँ कॉन्फ़िग में. कॉन्फ़िग में हमें कौन सा पोर्ट कॉन्फ़िग करना है? फास्ट इथरनेट 0.1. ठीक है. अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, अरे सॉरी, हाँ, यहाँ पे देखो. अब ये क्या सीन हो रहा है आपके साथ? ठीक है. यहाँ पे दिखाई दे रहा है बाय डिफ़ॉल्ट उसने जिस मोमेंट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फास्ट नीटर 0.0, तो देखो नीचे आपका कमांड दिखाई दे रहा है आपको, फास्ट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0.0. बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे कमांड ले लेता है. सो इन एग्जाम अगर आपको CLI के कमांड याद नहीं है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो. ठीक है. अब मैंने फास्ट इथरनेट 0.1 किया तो देखो यहाँ पे वो आ गया इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0.1. तो सारे ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट यही से आपके क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. अगर आपको, अब ये फिजिकल वाला पार्ट है, हाँ, अब ये इसको मैं ऑफ करता हूँ. मैंने मेरे राउटर को किया ऑफ. देखो राउटर को ऑफ किया, ये सारे के सारे आपके डिसेबल हो गए. अब मैं इस राउटर को करता हूँ ऑन. द मोमेंट यू विल मेक इट ऑन, अब मैं कॉन्फ़िग पे आता हूँ तो देखो ये बूटिंग हो रहा है अभी. सो वेट टिल द बूटिंग. तो उसके बाद का प्रोसेस में बोलता हूँ आपको क्या होगा. ओके, बूटिंग हो गया. अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ. सी, तो ये हमारा पहला ऑप्शन था NN वाला. अब मैं फास्ट इथरनेट 0.1 पे क्लिक करता हूँ तो देखो उसने बाय डिफ़ॉल्ट सारे कमांड ले लिए. अगर आप बॉटम में देखोगे तो आपको सारे कमांड मिल रहे हैं. पहला इनेबल कमांड हो गया. इनेबल के बाद दूसरा कमांड हो गया उनका कॉन्फ़िगर टर्मिनल. तीसरा कमांड हो गया आपका इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0.1. तो ये आप ध्यान में रखो. अगर आपको कमांड याद नहीं रहते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट करो, ये सारी चीज़ें कर लेगा. ठीक है. देखो इंटरफेस जैसे क्लिक करोगे वो इंटरफेस सिलेक्ट कर देगा वहाँ पे. ओके. अब इसके लिए पहले आपको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा. क्या था आपके दूसरे इसका आईपी एड्रेस? 192.168.2.10. ठीक है. ये आपका गेटवे था सारे नेटवर्क पे और बाय डिफ़ॉल्ट. अब आप, मैंने यहाँ पे लिखा तो, लेकिन नीचे कमांड में देखो वो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप कर लेता है. तो एक तो आप क्या कर सकते हो, GUI थ्रू प्रोग्रामिंग कर सकते हो या एक तो कमांड प्रॉम्प्ट थ्रू. बट कमांड प्रॉम्प्ट में प्रेफर करता हूँ क्योंकि आपके इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने आपके कमांड बोले हुए. कमांड 5 ही है, ज़्यादा नहीं है. कौन सा था पहला कमांड? इनेबल था. इनेबल के बाद दूसरा हम लिखते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल. कॉन्फ़िगर टर्मिनल के बाद आप लिखते हो कौन सा इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है. दैट इंटरफेस वी आर राइटिंग. आफ्टर दैट इंटरफेस वी आर राइटिंग द आईपी एड्रेस विच यू वांट टू कॉन्फ़िगर. और उसके बाद अब देखो ये बेसिकली ये वाला इंटरफेस ऑफ है क्योंकि ये रेड में दिखाई दे रहा है. तो उसको ऑन करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ कर रहे थे आप? नो शट डाउन. बट अभी मैं GUI थ्रू जा रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाके क्या करता हूँ? ऑन करता हूँ. द मोमेंट आई विल हिट इट ऑन, ये ऑन हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपकी बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर हो जाएगी. तो देखो यहाँ पे उसने लिखा है, नीचे भी देखो आप क्या लिखा है, पढ़ो एक बार. व्हाट इज़ दैट? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0.1 इट इज चेंज टू अप, क्योंकि आपने नो शट डाउन किया है उसको. तो ये अभी अप हो जाएगा. तो देखो ये अभी इनेबल हो गया है, राइट. बट मैंने इसको राउटर को स्विच ऑफ किया था, बिकॉज ऑफ दैट ये आपका क्या हो गया? डिसेबल हो गया. तो अभी मैं फास्ट इथरनेट 0 पे जाता हूँ.
फास्ट इथरनेट 0 बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया। ओके, अब मैं फिर से इसको जाके असाइन करूँगा। क्या असाइन करना है? आईपी एड्रेस, जस्ट मोमेंट, आई विल क्लिक हियर। क्या हुआ? ओके ठीक है, ये अभी आईपी एड्रेस असाइन नहीं करने दे रहा क्योंकि आपने बाय डिफॉल्ट भी GUI किया है। तो क्या था उसका आईपी एड्रेस? 10.10.10.10 ये था बाय डिफॉल्ट। सबनेट मास्क ले लेगा, तो देखो उसने यहाँ पे आईपी एड्रेस ले लिया बाय डिफॉल्ट, खुद से ही सारी चीज़ें ले ली। अब सिर्फ आपको इसको ऑन करना है, ये ऑन के ऊपर क्लिक करो। ये मेथड बोलता हूँ, ये हो गया है GUI बेस। तो GUI बेस भी आप असाइन कर सकते हो आईपी एड्रेस, बट आपके प्रैक्टिकल में उन्होंने कमांड लाइन इंटरफेस बोला है। तो मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखो यहाँ पे नो शट डाउन हो गया। आप ये कमांड देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। एग्जाम में याद नहीं रहते तो ये करो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट CLI के ऊपर जाके सारे कमांड्स कर लो। तो देखो ये अभी इनेबल हो गया आपका। ठीक है, ठीक है, चलो। तो अब ये इनेबल होने तक देखते हैं। अब इनेबल होने के बाद नाउ आई विल पुट माय पैकेट। तो अब मैं दोनों पे इस पे पैकेट डालता हूँ। एक पहला पैकेट इधर डालता हूँ, दूसरा इधर। इसके पहले ये वाले दोनों भी ऑप्शन क्या दिखा रहे थे आपको? वो इनेबल नहीं कर रहे थे। बट नाउ द मोमेंट आई विल हिट, इट विल शो यू द मैसेज। ओके, पहले केस में फेल दिखाई देगा क्योंकि ये इनेबल नहीं था। अब ये भी ग्रीन हो गया है, सो यू कैन चेक हियर। एक पैकेट इधर डालता हूँ, एक पैकेट इधर डालता हूँ। सो इन प्रोग्रेस फेल्ड। ठीक है, चलो ये डिलीट करते हैं, देखते हैं व्हाट इज द इशू इनके साथ। क्या, सॉरी, क्या डालना था आपको? पैकेट ना, यस। ये पैकेट डालते हैं। अब दूसरे पीसी से लेके यहाँ तक डालते हैं। ये फेल बोल रहा है, व्हाई इट इज फेल्ड? ये फेल क्यों हो रहा है? एक जस्ट अ मोमेंट, वी विल चेक दिस स्टफ, वी विल इंटरफेस दिस पार्ट। इन प्रोग्रेस फेल्ड। ओके, एक बार पिंग करके देखते हैं। विल ट्राई टू डू द पिंग ऑपरेशन कॉन्फिग। एक जस्ट मोमेंट, पहले इसको पिंग करेंगे हम। किसके साथ? हाँ, एक पैकेट यहाँ से यहाँ पे डाल के देखते हैं। पहला पैकेट यहाँ से राउटर को यहाँ पे जा रहा है क्या? दैट विल चेक। सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। देन इस साइड चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है क्या? यस, ये भी सक्सेसफुल हो रहा है। अब तीसरा पैकेट देखते हैं, यहाँ से ये वाले पीसी पे। ये भी अभी सक्सेसफुल हुआ क्योंकि राउटर थोड़ा सा टाइम लेता है। नाउ इट्स ओके, अभी सारी चीज़ें प्रॉपरली होंगी। तो यहाँ से यहाँ पे डालता हूँ मैं, हर चीज़ आपकी सक्सेसफुल होगी। आप भी देख सकते हो। इसको डिलीट करता हूँ। एक पैकेट उठा लो, हर बार पिंग करने की जरूरत नहीं। अब ये लैपटॉप टू ये लैपटॉप डालते हैं तो ये सक्सेसफुल हो गया। क्लियर है क्या? अगर आपको फिर भी सिमुलेशन करना है तो आप देख सकते हो, सिमुलेशन में जाओ। ठीक है ना, पहले ये सीन डिलीट करता हूँ मैं। ये मेरा एक ये ICMP प्रोटोकॉल है। पैकेट उठा लो, पहले सपोज PC0 तो अब मैं चेक करता हूँ लैपटॉप के बीच में, एंड सिंपली स्टार्ट द सिमुलेशन। तो ये पहले स्विच को जाएगा, स्विच से राउटर को जाएगा। सी, राउटर के 0 पोर्ट को गया। अब राउटर से फिर इस स्विच को आएगा, ओके, और इस स्विच से ये लैपटॉप को जाएगा क्योंकि आपने आईपी एड्रेस वगैरह दिया है। तो ये हो गया पहला स्टेप जहाँ पे रिक्वेस्ट आ गया। अभी इस रिक्वेस्ट को लैपटॉप रिस्पॉन्ड देगा। तो लैपटॉप पहले भेजेगा किसको? स्विच को भेजेगा। ओके, स्विच भेजेगा राउटर को, राउटर भेजेगा दूसरे स्विच को, एंड फ्रॉम दैट स्विच इट विल कम टू द PC0। तो आप किसी भी पीसी का कनेक्शन एक दूसरे के साथ चेक कर सकते हो। ठीक है, एक तो सिमुलेशन में जाके चेक करो, एक तो पिंग कमांड यूज करो, या एक सिर्फ पैकेट एक दूसरे के ऊपर डाल के देखो। तो यहाँ पे राइट टिक आ गया, तो इसलिए सक्सेसफुल ऑप्शन था। जब ये रन हो रहा था तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस ऑप्शन था। तो इसमें से कौन सा भी ऑप्शन आप करके देखो, बट एक बार सिमुलेशन हो जाएगा तो सीन हमेशा डिलीट करो। इवेंट लिस्ट क्लियर करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं आता हूँ रियल टाइम में। अब रियल टाइम में चेक करना है तो मैंने आपको सिंपल वे से बोला है क्या? ये पैकेट उठा लो, जिस पीसी पे डालना है वहाँ पे जाके देखो, नीचे आपको सारी चीज़ें प्रॉपर होगी तो सक्सेसफुल ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये पिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी देखना है किसी को तो देखो। सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओके, डेस्कटॉप में जाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, पहले मैं IP कॉन्फ़िग करता हूँ, मेरे खुद की सिस्टम का IP एड्रेस चेक करता हूँ। माई IP एड्रेस 10.10.3। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या? पिंग किसके साथ पिंग करना है? सपोज पहले पीसी के साथ 10.10.10.1। सो कैन आई पिंग इट? सो डेफिनेटली यू कैन पिंग इट क्योंकि अभी हमने सारा ऑप्शन देखा। तो एक तो पिंग कमांड करो, या एक तो सिमुलेशन स्टार्ट करो, या सिंपल वे क्या है, पैकेट उठा लो, किसी भी पीसी पे डालो एंड डू द चेकिंग ऑफ दैट। तो सक्सेसफुल मिल रहा है। वहाँ पे सोर्स डेस्टिनेशन भी बताता है आपको, पीसी का नाम PC1, राइट। ये मेरा PC1 था, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था।
और ये कहाँ पे गया, PC3, ये PC3 है। तो ये आप चेक कर सकते हो डायरेक्टली पैकेट रख के। अगर सक्सेसफुल है इसका मतलब ICMP प्रोटोकॉल वर्क हो रहा है, राइट। इट इज़ अ पिंग कमांड। ICMP प्रोटोकॉल का मतलब होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। सिंपल पिंग कमांड होता है, ये काम करता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऊपर। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ये यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका कौन सा एक्सपेरिमेंट, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर। अब आते हैं अगले वाला एक्सपेरिमेंट में, जहाँ पे हम बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द सेकंड स्टेप, दैट इज नथिंग बट डीलिंग विद द सबनेटिंग। सबनेटिंग को जाने से पहले सबनेटिंग का कंसेप्ट अच्छे से पता होना जरूरी है। तो पहले हम वो कंसेप्ट देखते हैं, देन विल गो फॉर सबनेटिंग। अब सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे क्लास सी का। सो व्हाट हैपन इन अ क्लास सी, क्लास सी में क्या होता है पहले उसके बारे में देखते हैं। सपोज मैंने एक नेटवर्क IP एड्रेस देता हूँ, ठीक है ना, 192.168.2.0। इसके नीचे हम लिखते हैं इसका सबनेट मास्क। क्या था सबनेट मास्क, 255.255.255.0। अभी पहले 255 बिट इनको बोलते हैं हम क्या, नेटवर्क। ये नेटवर्क को सेपरेट करता है, मतलब इनका अगर आप एंड ऑपरेशन करोगे तो क्या होगा, ये होगा होस्ट। तो आपके पहले 3 बाइट सेपरेट आउट होते हैं। ये 3 बाइट यानी कितने हो गए, 24 पोजीशन हो गए। और ये 8 बिट का है, ठीक है। मैंने आपको IP एड्रेस बोला था, ये किस तरह से लिखा जाता है, 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट। तो अब यहाँ पे 8 बिट बचे, तो 8 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे देखो सारे 8 बिट इनका बनेगा, सारे 3 4, सारे 8 बिट 0 तो सारे 8 बिट 1, सारे 8 बिट 0 है तो ये होता है 0, और सारे 8 बिट 1 होगा तो ये होगा 255। लेकिन मैंने अभी आपको बोला था क्या, पहला जो IP एड्रेस है यानी 192.168.2.0, इसको बोलते हैं हम क्या, कौन सा ID, नेटवर्क ID। ये किसी भी PC को असाइन नहीं होना चाहिए। और लास्ट वाला IP एड्रेस जिसको हम बोलते हैं इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट ID, 192.168.2.255, ये होता है आपके, ये जो नेटवर्क है इसका कौन सा ID, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन सब PC के ऊपर डालने है जो नेट के ऊपर है, तो वहाँ पे हम कौन सा ID यूज़ करते हैं, ब्रॉडकास्ट IP यूज़ करते हैं। क्लियर है क्या। नेटवर्क IP जनरली वी आर यूजिंग टू आइडेंटिफाई इट एज अ नेटवर्क, और ब्रॉडकास्ट ID वी आर यूजिंग फॉर दैट पर्पज। दैट्स वाई। अब एक चीज़ आपको एक और दिखाता हूँ, ये आप किसी भी PC को असाइन नहीं कर सकते। क्यों बोल रहा हूँ मैं, जैसे ये वाला सिस्टम है, अब मैं इसमें जाता हूँ और एक नया एंड डिवाइस ऐड करता हूँ। सपोज ये PC है, ये PC मैंने यहाँ पे ऐड किया। आई विल गिव द कनेक्शन, यहाँ पे जाके कनेक्शन देता हूँ। ये कनेक्शन हो गया फास्ट इथरनेट 0, ये कनेक्ट किया मैंने स्विच के साथ। अब मुझे इसको IP एड्रेस देना है, तो देखो मैं यहाँ पे IP एड्रेस में चला जाता हूँ, डेस्कटॉप यहाँ पे। तो क्या IP एड्रेस होगा, 10.10.10.0, ठीक है। ओके, क्लास ए के लिए, क्लास ए के लिए क्या होगा, ये 10.0.0.0। सी क्या लिखा है यहाँ पे, इनवैलिड IP फॉर दिस सबनेट मास्क एंटर, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा, 10 डॉट, ध्यान से समझना है, 0.0.0, ये क्लास ए का है, तो ये असाइन ही नहीं करेगा क्योंकि ये किसका IP एड्रेस है, दिस इज द IP एड्रेस ऑफ अ नेटवर्क। अब इसका ब्रॉडकास्ट IP डाल के देखता हूँ, ब्रॉडकास्ट IP क्या होगा, 10.255.255.255। इसको भी जब असाइन करोगे तो ये आपको बोलेगा IP एड्रेस इज नॉट डिजाइन फॉर दिस सबनेट। ये हो गया क्लास ए के लिए। सेम तरीका आपका क्लास सी में भी ये PC ऐड करके देखो, एक आध PC। तो मैं एंड डिवाइस पे जाता हूँ, एक PC उठाता हूँ, यहाँ पे डेल पुट करता हूँ, देन आई विल गिव द कनेक्शन। ये कनेक्शन होगा आपका स्ट्रेट केबल का, देखो। तो यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स है, आप कौन से भी पोर्ट को इंटरफेस करो। बट प्रॉब्लम क्या होगा इसका, ये नेटवर्क कौन सा है आपका, 192.168.2.0, तो इसको IP एड्रेस असाइन नहीं कर सकते आप। तो देखो यहाँ पे मैं IP एड्रेस डालता हूँ 192.168.2.0। दिस इज नॉट पॉसिबल टू असाइन। क्यों, क्योंकि बोल रहा है ये सबनेट मास्क के लिए वैलिड नहीं है। द IP एड्रेस इज 192.168.2.255। दिस IP एड्रेस आई कांट असाइन। बट इस ये छोड़ के कुछ अलग कर सकते हो क्या, यस। सपोज मैं डालता हूँ 192.168.2. अभी डालता हूँ मैं 56, इज इट असाइन, यस, ये असाइन हो जाएगा। क्लियर है क्या। ये नेटवर्क ID आपका होता है विद द वैल्यू 0, और ब्रॉडकास्ट ID होता है विद द वैल्यू 255, अगर क्लास C की बात करें तो। क्लियर है, ठीक है। तो पहले इसमें होस्ट होंगे कितने, मैक्सिमम एक IP में होस्ट होंगे मैक्सिमम 254।
254 कितने होस्ट होंगे यहाँ पे? मैक्सिमम होस्ट आर 254 क्योंकि दो आईपी एड्रेस ऑलरेडी रिजर्व्ड है, तो ये वैल्यू हो गया 254। अब हम बात करते हैं सबनेटिंग की। व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट? तो इसको मास्क करने के लिए कितने बीट्स यूज किए आपने? दैट्स व्हाई वी कैन राइट इन फ्रंट ऑफ दिस 192.168.2.0, इसके सामने आप लिखते हो 24 क्योंकि नेटवर्क के लिए आपने इतने बीट्स असाइन कर दिए 24, 888, दिस इज द 24। क्लियर है क्या? ओके अब हम देखते हैं इसको हमें सबनेट करना है। सबनेट मतलब इसमें कितने पीसी फिट होंगे आपके? 254। अब ये 254 पीसी को मुझे और दो ग्रुप में डिवाइड करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो मेरा नेटवर्क बीट एक से बढ़ाना होगा। एक से बढ़ाना होगा मतलब क्या होगा? पहले था ये क्या? 255.255.255 डॉट। अब मैं क्या कर रहा था? पहले सारे बीट 00 थे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं क्या करता हूँ? ये पहला बीट 0 के जगह पे 1 करता हूँ और ये वैल्यू फिर होगा 000000। एज अब ये बिट 1 करने से इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? योर नेटवर्क आईडी जब अब मैं लिखता था 192.168.2. ये वैल्यू क्या बनेगा आपका? बेसिकली दिस इज व्हाट, ये 1 लिखने की वजह से ये वैल्यू बनता है 128। तो आई हैव टू राइट दिस वैल्यू एज अ 128। ठीक है, ये बाइनरी वैल्यूज को डेसिमल में कन्वर्ट करो क्योंकि ये सिंपल लॉजिक होता है, आपको बताता हूँ। ये जैसे लास्ट जीरो का वैल्यू क्या होगा? दिस विल बी 0। इसका वैल्यू क्या होगा? दिस विल बी 2। ये वैल्यू होगा 4। ये वैल्यू सॉरी यस ये वैल्यू होगा 4। ओके, उसके बाद ये वैल्यू क्या होता है? सॉरी ये 1 होगा आपका 1 2 4। ये वैल्यू होता है 8। ये वैल्यू होता है 16। ये वैल्यू होता है 32। ये वैल्यू होता है 64 और ये वैल्यू होता है 128। इस तरह से आप सबको ऐड करोगे तो सारे बिट 1 हो गए तो सबका एडिशन मिलेगा 255। ये इस तरह से काम करता है। तो जैसे अभी ये सबनेट मास्क की ये बिट आपने 1 किया, ठीक है, तो अब यहाँ पे दो आईपी एड्रेस होंगे, एक तो 0 होगा सबनेट, एक 1 होगा। तो 0 अगर होगा तो उसके लिए ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक भागेंगे? अगर ये वैल्यू 0 है तो अभी आपके पास बचे कितने बिट? 7 बिट्स बचे, क्योंकि आपने पहला बिट यूज किया। पहला बिट एक ही बिट यूज करने की वजह से उस बिट के वैल्यू क्या होंगे? एक तो 0 या 1। तो दो सबनेट बनेंगे, एक में ये वैल्यू 0 होगा वो वाला और एक में ये वैल्यू 1 होगा ये वाला। अभी 0 है तो सारे 0 आएंगे उस केस में, ठीक है। तो ये होगा आपके इस सबनेट का नेटवर्क आईडी। कौन से वाला? ठीक है, मैं आपको यहाँ पे चाहिए तो समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे नोटपैड में हम टाइप करते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइपिंग में इश्यू आ रहा है। ओके, विल गो विथ न्यू टैब। तो देखो आपका पहला आईपी था 192.168 डॉट क्या था? 2.0। इसके सामने थे 24, राइट। 24 का मतलब सबनेट मास्क बनेगा 255.255.255.0। ये केस था आपके केस में। बट अभी मुझे सबनेट करना है, मतलब ये इसमें अब कितने आईपी एड्रेसेस थे आपके? आईपी एड्रेसेस कितने थे इसमें? IP addresses which we can assign, they are 254. Why 254? क्योंकि पहला IP address 192.168.2.0 इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कंसिडर्ड एज योर नेटवर्क IP। ये IP एड्रेस आप दे नहीं सकते। और दूसरा 192.168.2.255 इसको हम बोलते हैं कौन सा IP? दिस इज कंसिडर्ड एज योर ब्रॉडकास्ट IP। तो ये हो गए। अब मैं क्या करना चाहता हूं? मेरे पास 254 है, राइट। इसी को मैं और दो ग्रुप में डिवाइड करना चाहता हूं। सो हाउ आई कैन डू दैट? तो इसलिए मैंने यूज किया 192.168.2. अब ये बनेगा, अगर आपको उस केस में जाना है तो ये 0 ही रहेगा, बट इसके सामने लिखता हूँ 25 बिट्स। 25 बिट्स क्यों? क्योंकि आप आगे से आ रहे हैं ना कि पीछे से। तो ये अभी बनेगा कि आपका सबनेट मास्क 255.255.2.128। ये 128 कहाँ से आया? अब पहले तो आपको क्लियर है, मैं 128 के बारे में बताता हूँ। ये 0 0 0 0 0 0 0 सॉरी टैप 0, ठीक है। ये 8 बिट हो गए, तो इनका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा? इनके ऊपर उनके वैल्यू भी लिखता हूँ मैंने अभी आपको बोला था, ठीक है ना। इसको नीचे लेता हूँ, इसको नीचे लेते हैं, इसके ऊपर वैल्यू लिखता हूँ। पहले का वैल्यू होगा 128, ओके, ये स्पेस देना पड़ेगा आपको। दूसरे का वैल्यू होगा आपका 64, ठीक है। तीसरे का वैल्यू होगा आपका कितना? 32। नेक्स्ट फोर्थ का वैल्यू होगा आपका 16, ठीक है। उसके आगे का वैल्यू होगा आपका 8। उसके आगे का
उसके आगे का वैल्यू होगा आपका 4, उसके आगे का वैल्यू होगा आपका 2 और उसके आगे का वैल्यू होगा 1। ठीक है, ये इस तरह से काम करेंगे। तो पहला बीट मुझे अभी ये बीट मैंने यूज किया हुआ है 128 वाला, राइट, बिकॉज ऑफ दैट सिर्फ एक ही बीट यूज करने की वजह से अभी होगा। अभी बचेंगे कितने बीट मेरे पास? फॉर माय प्रोग्रामिंग पर्पज आई हैव टोटल 7 बीट्स। तो इसमें दो नेटवर्क कौन से बनेंगे? पहला नेटवर्क मैं आपको बताता हूँ। पहला नेटवर्क बनेगा 128 वाला 0 और आगे के उसके आगे के सारे बीट्स क्या होंगे आपके 7 0 5 6 7, राइट, क्लियर। और ये जब 0 होगा इसका एंड आईपी एड्रेस क्या होगा आपका? द एंड आईपी एड्रेस इज विद ऑल वैल्यू 1111111। तो ये होगा इसका वैल्यू होगा 0 और इसका वैल्यू होगा कि आपका दिस वैल्यू इज 127। तो इसका मतलब सबनेट में से पहले सबनेट का आईपी एड्रेस क्या होगा? द आईपी एड्रेस इज 192.168.2.0 स्टार्टिंग आईपी एड्रेस। इसके सामने इसका सबनेट मास्क क्या होगा आपका? 255.255.255.128। ठीक है, ये इस तरह से काम करेगा। थोड़ा सा इसको पीछे लेता हूँ, ओके। और नीचे के लिए व्हाट इज द एंड आईपी एड्रेस? जो ब्रॉडकास्ट आईपी होगा 192.168.2.127, क्योंकि ये सबनेट मास्क है, थोड़ा सा समझो। और उसका भी उसके सामने मैं लिखता हूँ /25, मतलब उसका सबनेट मास्क भी यही होने वाला है 255.255। ये हो गया पहले के लिए, राइट। ये हो गया कौन सा बीट? दिस इज बीट नंबर 8 जो हमने 128 वैल्यू लिखा था। लेकिन इसके अभी दो नेटवर्क बनेंगे। कैसे? एक वैल्यू 0 होगा तो और एक वैल्यू 1 होगा तो 1 होगा तो ये वैल्यू क्या होगा? अगेन ऑल बिट्स आर 0 0 0, ठीक है। लेकिन उस केस में ये वैल्यू बनेगा कि आपका पहले वाले केस में 120 0 to 127 हो गया, अब ये बनेगा 128। सो व्हाट इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दैट? 192.168.2.128। और इसको हम नेटवर्क आईडी बोलेंगे दूसरे वाले का। और इसका सबनेट मास्क तो वैसे रहेगा /25, हर केस के लिए सबनेट मास्क वही रहेगा। उसके बाद 8 बिट 1 होगा तो उसका एंड एड्रेस क्या होगा आपका? द एंड एड्रेस इज ऑल 1। 6 हो गए ऊपर, एक और 0 आएगा, ऑल 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यानी ये वैल्यू क्या होगा बेसिकली? इफ यू सी दिस वैल्यू, दिस इज 128.1, सॉरी, ये वैल्यू क्या होगा आपका? दिस इज 255, राइट, लास्ट आईपी एड्रेस, क्योंकि पहला बिट भी 1 है और ऑल 1 है। तो ये बनेगा आपका 192.168.2.255 और इसके सामने फिर से लिखेंगे हम /25, क्योंकि सबनेट मास्क तो सेम है। तो इसके अभी दो आईपी एड्रेस बनेंगे, ठीक है। तो पहला आईपी एड्रेस, पहला नेटवर्क बनेगा 0 to 127 वाला, दूसरा नेटवर्क बनेगा आपका 128 to 255 वाला। दिस इज कॉल्ड एज सबनेटिंग। इसको हमने क्या किया? जो 255 का एक ग्रुप था उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ये दो पार्ट में क्यों डिवाइड हो गया? आपने एक ही बीट यूज किया। अगर आप दो बीट यूज करोगे, ऊपर वाले दो बिट, तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा आपको? दिस वैल्यू इज नॉट 25 नाउ। अगर आपको दो यूज करने तो वैल्यू क्या डालना पड़ेगा आपको? 26 डालना पड़ेगा, राइट, क्योंकि दो होगा। अब 26 डालोगे तो कितने सबनेट क्रिएट होंगे? अब दो बीट यूज हो गए तो इनका वैल्यू 0 0 होगा, एक बार 0 1 होगा, एक बार 1 0 होगा, एक बार 1 1 होगा। तो 4 सबनेट क्रिएट होंगे। सबनेट 4 क्रिएट हो गए, बट उसका रेंज आगे जाके कम हो जाएगा। अब रेंज क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ 2, ये केस में हो गया। जो पहले 256 था, ध्यान से समझो ये वाला केस, पहले कितने सोर्ट डाल सकते हैं? अब 256, मैंने उसमें से उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, इसके लिए ये 128 + 128 में डिवाइड हो गया इस तरह से। अगर आप 4 सबनेट करते हो तो ये किस में डिवाइड होगा? 64 में डिवाइड होगा। 64 + 64 + 64 + 64, क्लियर है क्या? तो पहले का आईपी एड्रेस कहाँ पे जाएगा? पहले सबनेट का इट विल बी फ्रॉम 0 to 63, दूसरे का जाएगा 64 to 127, तीसरे का जाएगा 128 to, जो उसमें 63 ऐड करो, इस तरह से होगा। 4 सबनेट हो गए, उसको और 8 में डिवाइड करोगे तो और ये वैल्यू कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिपेंड ऑन आवर चॉइस वी कैन डिसाइड इट। आपके लैब का स्ट्रेंथ क्या है? जैसे अगर आपके लैब कंसिडर करते हो, अभी लैब में आपके 30 पीसीज है, तो आप ये 64 वाला भी आपके लिए चल जाएगा। इवन इफ दे विल इंक्रीज, ये 30 से डबल हो जाएगा, यानी 60 पीसी लैब में फिट होंगे, तो 64 वाला चलेगा। लेकिन 64 के लिए आपको करना क्या होगा? व्हाट यू नीड टू डू इफ यू वांट टू गो फॉर 64, वो आपको बनाना पड़ेगा। ये 8 बिट होंगे, उसमें पहला 1 होगा, दूसरा 1 होगा, और बाकी सारे बिट्स आपके 0 0 होंगे, 3 6 बिट। तो मतलब ये वैल्यू क्या निकल के आएगा? नाउ इट इज 128 + 64, तो अपना सबनेट बदल जाएगा उस केस में। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा?
9, ओके 192 बनेगा ये वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब आपका सबनेट मास्क क्या डालना होगा यहाँ पे, अभी ये 128 ना होके ये बनेगा 192, राइट। बट उस केस में यहाँ पे क्या हो गया, अभी अगर 192 के लिए जाते हो, ठीक है ना, क्लियर है, तो चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ यही चीज़। अभी मैंने कितने बीट्स लिए मेरे इसमें, 2 बीट्स लिए, तो यही कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो ये बीट कहाँ से कहाँ पे जाएगा उस केस में, दिस विल मूव लाइक दिस, यहाँ पे भी 0 0 ना होके 0 0 होगा एक वाला केस, तो ये एक 0 कम हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे भी फिर से पहले वाले का केस क्या होगा, ये 0 0 बनेगा। अब ये 0 0 तो एक 1 कम हो जाएगा, तो बिकॉज ऑफ दैट ये वैल्यू कहाँ तक जाएगा, दिस विल नॉट गो अप टू 127, ये जाएगा 63 तक जाएगा। और ये अभी ये क्या बनेगा इसका, दिस विल बी 63, और ये अभी 128 ना रह के ये क्या बनेगा, अभी हमने देखा नया सबनेट मास्क बनेगा 192, अभी 25 नहीं रहेगा, ये बनेगा 26। तो पहला 0 0 हो गया, दूसरा बनेगा आपका 01, ये बनेगा क्या आपका 01, तो 01 एक 0 फिर से इधर से कम हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास 6 ही बीट बचे, 2 बीट चले गए उसमें, तो ये इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा 192। ठीक है, और इसका अभी ये बनेगा क्या, कौन सा आईपी एड्रेस, दिस विल बिकम नॉट 127 बनेगा, और ये सबनेट मास्क बनेगा 26 का, क्योंकि अभी आपने 2 बिट यूज किए आपके नेटवर्क आईडी से। नेक्स्ट क्या बनेगा इसका 0001 बन गया आपका। नेक्स्ट विल बी व्हाट, कंट्रोल सी, अभी इसी को मैं पेस्ट करता हूँ 2 बार, कंट्रोल वी। अगला बनेगा आपका 10, तो ये बनेगा 10, यहाँ पे आके भी ये बनेगा आपका 10, बिकॉज ऑफ दैट ये क्या बनेगा अभी आपका 128 से स्टार्ट होगा, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 128, और 128 से लेके उसमें 63 ऐड करो, कितना बनेगा वैल्यू, ओह सॉरी, ये स्टार्ट होगा आपका कहाँ से, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 64, हाँ, ये 64 से स्टार्ट होगा टू अप टू 127, अब ये स्टार्ट होगा 127, तो कितना होगा 64 191 तक जाएगा ये बेसिकली, दिस विल मूव टू अप टू 191, और ये स्टार्ट होगा आपका 192, नाउ इट विल मूव टुवर्ड द लास्ट आईपी एड्रेस दैट इज योर 255, ओके। बट इस केस में वैल्यू क्या बनेगा, अभी लास्ट का कॉम्बिनेशन आएगा 11 वाला। तो अभी इसके 4 सबनेट बने, कितने के 64 के, उसमें से भी 0 नेटवर्क आईडी हुआ, 63 ब्रॉडकास्ट आईडी, 128 नहीं आएगा, ये होगा सॉरी, ये बनेगा स्टार्टिंग 64 से, ये चला जाएगा आपका अप टू 127, उसके बाद ये स्टार्ट होगा 128 से, ठीक है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 128, और ये चला जाएगा आपका 191 तक, और ये स्टार्ट होगा आपका 192 से, दिस विल गो 255। तो देखो ये अभी सबनेट मास्क 26 बना, तो आपका ये 192 बनेगा इस तरह से, और अभी यहाँ पे बन रहे 4 सबनेट, लेकिन 4 सबनेट का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 64 64 64, लेकिन सारे 64 यूज कर सकते हो क्या, नहीं, उसमें से पहला नेटवर्क आईडी होगा, लास्ट वाला होगा ब्रॉडकास्ट आईडी, सो दिस इज योर नेटवर्क आईडी, ये 00 के लिए ये बनेगा आपका नेटवर्क आईडी, ये बनेगा इसका ब्रॉडकास्ट आईडी, तो इसमें कितने सिस्टम फिट होंगे 62, ये इसका नेटवर्क आईडी बना, ये इसका ब्रॉडकास्ट आईडी बना, इसमें भी कितने सिस्टम फिट हो गए 62। इस तरह से ये हो गया आपका कौन सा क्लास, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू योर सबनेटिंग। 4 का सबनेटिंग बोला, 2 का सबनेटिंग बोला, अभी हम देखेंगे 2 वाला सबनेटिंग, ठीक है ना, विल सी अबाउट द सबनेटिंग ऑफ द 2। तो मैं क्या करता हूँ, आई विल सिलेक्ट ये वाला क्लोज करता हूँ, अभी नया वाला ओपन करेंगे हम, ठीक है, आई विल चूज द न्यू वन। तो उसके लिए फिर से एंड डिवाइसेस में जाता हूँ, आई विल सिलेक्ट 2 पीसी, एक पीसी एक पीसी ये, उसके बाद ओके 4 पीसी लेते हैं हम दूसरे नेटवर्क के लिए, एक पीसी है एक पीसी ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमें 2 स्विचेस लगेंगे, ठीक है, सो विल गो टू एंड डिवाइसेस, वी विल यूज स्विच, ठीक है ना। तो ये वाला स्विच इधर हो गया, ये वाला स्विच आपका इधर हो गया, ठीक है, एंड देन विल गो फॉर राउटर, राउटर यूज करोगे आप, तो एक वाला राउटर इधर आएगा आपको, सॉरी राउटर यूज़ करते हैं 2911, जो भी यूज़ करना है करो आप, देन गिव द फिजिकल कनेक्शन। अब थोड़ा सा फास्ट करता हूँ मैं, क्योंकि अभी हमें प्रैक्टिस है अच्छे से, सो विल डू द कनेक्शन, ठीक है, ओके, अगेन कम हियर, यूज इट, गिव द कनेक्शन, ठीक है, अगेन कम हियर, डू दिस, इसको इसके साथ इंटरफेस कर दो। अब इसको 3 है और उसमें से भी गीगा बीट है, सो दैट्स योर चॉइस, अब आपके चॉइस के हिसाब से कर दो,
ये वाला केस इधर इंटरफेस किया। तो आपको जो चाहिए, जिस तरह से चाहिए उस तरह से आप इंटरफेस कर दो, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आ गया, ये हो गया फास्ट इथरनेट 0। एंड नेक्स्ट आई विल सिलेक्ट हियर, आई विल असाइन दिस एंड विल गिव इट टू हियर, ठीक है। अब इसको क्या क्या आईपी एड्रेस देने हैं उसके लिए पहले हम ये डालते हैं यहाँ पे, प्लेस अ नोट हियर। तो पहले मैं डालता हूँ इसको 192.168.2.1 पहले पीसी को। इसको हम देंगे 192.168.2. क्या हो गया ये 2.2। इसका ब्रॉडकास्ट आईपी हम यहाँ पे डालते हैं, इट इज़ 192.168.2.10। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे हम अभी हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। मैंने यहाँ पे आपको बोला कौन से दो पार्ट में, तो देखो ये वाला चीज़ है आपके लिए, राइट। 0 to 127 पहला नेटवर्क हो गया आपका, और यहाँ पे 1 to यानी 128 to 255। तो यहाँ पे हम जैसे 130 डालता हूँ मैं इसके लिए, ठीक है ना। यहाँ पे डालता हूँ मैं 190, चलो 192.168.2.150 डालता हूँ। तो अभी ये चला गया दूसरे सबनेट में। तो ये इसका लेफ्ट वाला साइड है आपका किसका, अप टू 127, राइट वाला साइड है 150 वाला, ठीक है। यहाँ पे 150 डाला है तो आईपी एड्रेस डालता हूँ मैं सपोज 192.168.2.130 डालता हूँ इसको, पहले वाले पीसी को। दूसरे वाले पीसी को 192.168.2. इसका आईपी एड्रेस सपोज 131 होगा। तो ये क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें। अभी हमें यही आईपी एड्रेस सबको असाइन करने हैं, सो विल डू दैट। इसको असाइन करते हैं, ठीक है। PC 0 पे, सॉरी, अब पहले यहाँ पे क्लिक करो, देन असाइन द आईपी एड्रेस टू योर पीसी। क्या होगा, डेस्कटॉप पे चले जाओ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में चले जाओ, देन गिव द आईपी एड्रेस। व्हाट इज दैट, 192.168.2.1। पहले का इसको कॉपी करता हूँ मैं। इसका सबनेट मास्क क्या लेना, सॉरी इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या लेना है हमें, हमने 10 डिसाइड किया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि राउटर के पोर्ट को हमें वही आईपी एड्रेस देना है। अरे क्या हो रहा है ये, ठीक है। सो आई विल सिंपली डू द पेस्ट हियर और उसके पीछे 10 देता हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ, यह असाइन हो गया, ओके। उसके बाद यहाँ पे आता हूँ, इसको डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, इसका आईपी एड्रेस था 2 और इसका गेटवे भी था आपका 10। गेटवे सब पीसी में, एक नेटवर्क जो आपके राउटर के एक पोर्ट को कनेक्ट है उन सबका सेम रहेगा, इट इज़ 2.1। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाओगे, देन कॉन्फ़िगरेशन, ये थोड़ा इस साइड लेता हूँ मैं सो दैट आपको, अरे क्या हुआ, सो दैट आपको पीसी दिखाई दे। एंड व्हाट इज द आईपी एड्रेस नाउ, इट इज़ 2.130 ओके। और सबनेट मास्क तो वही रहेगा। और यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या था आपका, इट वाज 150 इस साइड के वाले के, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पे आएंगे डेस्कटॉप, आईपी एड्रेस क्या था इसका, था 131। तो ये कंट्रोल V हो गया, ये हो गया 131, सबनेट मास्क आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे हम डालेंगे विच इज़ योर 150। ये हो गया सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप पिंग करके देख सकते हो, ओके। बट बिफोर दैट इसको इनेबल करना होगा। राउटर में जाओगे, देन आप CLI पे जाओगे। CLI पे मैं आपको फिर से वो कमांड एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एंटर ओके, नो डालता हूँ, एंटर करता हूँ, राउटर आ गया। उसके बाद आपको डालना है इनेबल, ओके। इनेबल हो गया तो ये ऑप्शन आएगा। उसके बाद क्या था आपका, कॉन्फ़िगर। अगर आपको पूरा पता नहीं है तो कॉन्फ़िग करने के बाद टैब दे दो। उसके बाद टर्मिनल में TR लिखता हूँ, टैब देता हूँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट टर्मिनल लेता है। आई विल प्रेस द एंटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे आप, द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू यूज द इंटरफेस। तो कौन सा इंटरफेस था पता नहीं है तो कॉन्फ़िग में जाओ, आपको पता चलेगा गीगाबिट ईथरनेट 0, ठीक है ना। तो ये 0 वाला है। तो देखो अभी वो डिसेबल है, तो मैं देखता हूँ होता है क्या इनेबल। तो पहले इंटर करता हूँ, टैब दे दो, इंटरफेस ले लेगा। उसके बाद गीगाबिट का गीगा लिखता हूँ, टैब दे दो, वो ले लेगा। और कौन सा इंटरनेट ये था आपका 0/0, ये कर लेगा। ये हो गया। नाउ आई हैव टू असाइन द आईपी एड्रेस। तो क्या होगा यहाँ पे, IPADDRESS आईपी एड्रेस क्या है आपका, 192.168.2.10, ठीक है। बट इसका सबनेट मास्क क्या था, 255.255.255.128। दिस वॉज द सबनेट मास्क, ठीक है। तो इसको एंटर करते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव टू राइट नो शट, नो शट डाउन लिखा तो भी चलेगा, इट विल इनेबल इट, ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये कमांड्स हमने देखे थे अभी, फिर से रिपीट, मैंने आपको रिपीट किया। अब दूसरे इंटरफेस के लिए, सॉरी, दूसरे इंटरफेस के लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे जाता हूँ, किसमें, कॉन्फ़िग में जाता हूँ और गीगानिट ईथरनेट 1 पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आईपी एड्रेस दूंगा। व्हाट इज़ योर आईपी एड्रेस, क्या था आपका आईपी एड्रेस,
इट वॉज, इसका आईपी एड्रेस क्या था, दूसरे वाले का था 150, तो मैं 150 करता हूँ, लेकिन इसका सबनेट मास्क अलग होगा, 128 आ गया है, ठीक है। और इसको ऑन कर दो। ये नीचे सारे कमांड रन हो रहे हैं जो हमने असाइन किए ना, वो सारे कमांड यहाँ पे आ गए, तो ये भी आपका इनेबल हो गया है, ठीक है। गलती से सबनेट मास्क ना यहाँ पे हमारा थोड़ा सा चेंज करना होगा, ये नहीं है, ये था आपका 128 वाला, याद है, यहाँ पे मैंने आपको बोला था हमने इसको सबनेटिंग ऐड कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ 128, ये ऐड कर दो सब जगह पे, ये 128 ऐड करना होगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि हमने सबनेटिंग किया हुआ है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो चारों पीसी के चेंज कर दो, तब तक राउटर इनेबल हो जाएगा, नो इशू, विल डू दैट, ठीक है। इट इज़ 128, क्योंकि हमने कितने नेटवर्क क्रिएट किए, दो, कितने सबनेट हो गए, दो, आपको चार करने, तो क्या चेंज करना है ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया हुआ है। एवरीथिंग इज ओके, नाउ यू कैन डू द पिंग कमांड एंड चेक, अदरवाइज मैंने आपको स्ट्रेट अवे बोला था क्या करो, पैकेट उठा लो, एक पैकेट यहाँ पे डालते, दूसरा पैकेट यहाँ पे डालते, सारी चीज़ें प्रॉपर होगी तो इन प्रोग्रेस देगा, ठीक है। राउटर के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले हम अब ये सॉरी पहले हम पी एक्स नेटवर्क के दोनों साइड पे चेक कर दे, जैसे ये वाला और ये वाला, इज इट वर्किंग, तो सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद हम दूसरे साइड चेक करते हैं, PC3 टू PC2 हो रहा है, ओके, सारी चीज़ें ओके, सक्सेसफुल, ठीक है। नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं ये इसी तरह से चेक कर रहा हूँ, अभी मैं पिंग के लिए नहीं जाता, मैंने आपको बोला हुआ है यू कैन डू विथ द पिंग कमांड ऑल्सो। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ से राउटर के इस पोर्ट को जाता है क्या, यस सक्सेसफुल हुआ, ओके देन गुड। फिर से चेक करता हूँ यहाँ से PC02 राउटर के इस पोर्ट को जाता है क्या, यस इट इज सक्सेसफुल, मीन्स एवरीथिंग इज ओके। नाउ ये फिर से ये डिलीट करता हूँ, अभी मे भी राउटर सेटल हुआ होगा, तो पहले इस पीसी से इस साइड में अभी मैं चेक करता हूँ, इन प्रोग्रेस बता रहा है, फेल्ड बता रहा है, ठीक है, माइट बी इट इज टेकिंग सम टाइम। अब यहाँ से हम यहाँ पे जाके देखते हैं, देखो सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि राउटर थोड़ा टाइम लेता है राउटिंग टेबल अपडेट करने के लिए एंड ऑल दिस स्टफ। तो अभी ये सारी ऑपरेशन आपको प्रॉपरली दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाओ, ये करो, ये करो, तो देखो सक्सेस इन प्रोग्रेस बता रहा है, अब ये फेल्ड हुआ, ठीक है। देखते हैं क्या इशू हुआ इसको, ये इशू नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ से यहाँ पे जाके चेक करते हैं हम, इज इट वर्किंग, सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे देखते हैं हम, इस पीसी से लेके इस पीसी के लिए इन प्रोग्रेस बता रहा है, फेल्ड बता रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है इसका, इसका आईपी एड्रेस चेक करते हैं, 192.168.2.2 हुआ, ओके, हाँ इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे गलत हुआ, इसकी वजह से वो 10 चाहिए था, ठीक है, हो गया 10। नाउ आई थिंक इट हैज़ टू वर्क, सबका डिफ़ॉल्ट गेटवे सेम है, एक बार देखो, जैसे यहाँ पे 10 था, ओके, बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज ए इशू, इसका 150 था, ओके, सब कुछ ठीक है, और इसका भी 150 है, ठीक है, ये दूसरा नेटवर्क इसका 150, ओके, नाउ इट विल वर्क, देयर इज नो इशू। तो एक बार देखो कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा, बिकॉज ऑफ दैट ये हो रहा है आपका। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ, दैट विल वर्क, ये सक्सेसफुल हो गया। सिमुलेशन में जाना है, जाओ, आप क्या करो, पहले एडिट करो, एक ही फिल्टर सेलेक्ट करो, ICMP, बाकी के प्रोटोकॉल हम अभी देख नहीं रहे, तो वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट, एंड सिंपली स्टार्ट द सिमुलेशन। तो ये चालू करेगा PC1 टू PC2 को जाने के लिए, यहाँ से स्विच को जाएगा, फिर राउटर को जाएगा, फिर इस स्विच को, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई है, क्लियर। तो ये हो गया सबनेटिंग, जिसमें हमने कितने सबनेट डिजाइन किए हुए हैं, दो सबनेट्स, ठीक है। मैंने आपको चार वाले का भी लॉजिक एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हो, चार सबनेट क्रिएट करो, तो आपको उस केस के लिए ऐसा राउटर लगेगा जिसको चार पोर्ट्स होंगे, ठीक है, या आप दो राउटर भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जो हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। तो अभी ये PC32 रिस्पॉन्स जा रहा है वापस, जो PC1 को आके रुकेगा। तो यहाँ पे देखो अभी इन प्रोग्रेस है, जिस मोमेंट पे पैकेट यहाँ पे रीच होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा सक्सेसफुल, ठीक है। तो यहाँ पे जब टिक आएगा तो ये सक्सेसफुल होगा, इन प्रोग्रेस वाला। तो देखो, यस इट इज़ रीचिंग, नाउ इट इज सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल हो गया। तो इस तरह से ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। अगर आपको देखना है कि चार वाला, ये वाला दो वाला हो गया, इसलिए इस तरह से आएगा, चार वाला देखना है तो आपको ये रेंज लेना पड़ेगा, ये सारे वैल्यू डालने पड़ेंगे चारों, इसमें सबनेट मास्क वगैरह प्रॉपरली डालो उस केस में, ठीक है ना, क्योंकि ये 63 वाला आपका ये सबनेट मास्क 192 होने वाला है, पहले सबनेट के लिए, दूसरे के लिए आपका रेंज अलग होगा, 64 टू 127, तीसरे के लिए 128 टू 192, एंड इट इज़ ये 191 चाहिए था, और ये 192 टू 255, इस तरह से आपके एड्रेसेस होंगे चार सबनेट मास्क के। होप सो ये क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो। कुछ कमेंट्स, कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट्स में आप डाल सकते हो, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वो भी कमेंट्स में डाल सकते हो, सो दैट यू कैन रिकमेंड टू अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो आज यहीं पे रुकते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया, बट इट वॉज नेसेसरी, इसमें सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हुए, ओके। चलो, थैंक यू सो मच, ओके, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।